Hello friends, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Semester 2, Chapter 2, India, Climate and Natural Resources. This video is specially for GSCB students. Friends, in Standard 6, you studied about Gujarat climate and natural resources. In this standard, you have to study about India's climate and natural resources. This is very interesting chapter. Many things are there which you enjoy while watching this video. Whatever the things are given in your textbook, you can see all the pictures of that, especially in natural resources portion. You will study about wildlife and water resources, land resources, different kind of forest, uh, multi-purpose project. So that only name given in your textbook. While here, while you are watching this video, you can see all the pictures of that also. So that makes your study memorable. You can remember all the things very properly, and you understand all the things very clearly. So friends, in this video, as usual, we start with introduction. Then after we talk about seasons of India. Then after effect of climate. Then we learn about meaning of resources. In that we talk about water resources, mineral resources. Then after we talk about type of minerals, uses of minerals, land resource, importance of forest, conservation of forest, wildlife resource, sanctuaries and national park, and preservation and conservation, and a small exercise given after the ending of the chapter. In that, map work is also included. So in first video we talk about Gujarat, medieval Gujarat. I hope that you all liked that video and you understood all the things very clearly and properly. Then after, those who are not watched that video, watch that first chapter video. In that, while you are searching, write down Standard 7, Semester 2, Chapter 2, whatever the name is given, and then after Part 1 or Part 2. So this is Part 1. Let's start the video. Chapter number 2, India, Climate and Natural Resources. So what are the natural resources? That first we have to understand. So see, natural resources in India is endowed with different types of natural resources such as fertile soil, forest, minerals and water. These resources are unevenly distributed. The various types of different natural resources of India is discussed below. Soil resources. India has a large proportion of well-watered fertile lands in the alluvial soil of the northern Great Plains of the Satluj. Then after, what is climate? So the climate is the common average weather condition at a particular place over a long period of time. What kind of long period? So it is minimum 30 to 35 years. Factors which affect on climate are latitude, altitude, height, distance from the sea, pressure and wind system, relief and ocean current. This is a picture of that. So you might easily understood about this thing. This is the height, what latitudes are there, the place is how much far from the ocean, that also effect on the climate. So that we talk in this chapter. Then after, India's location. So located in the northern hemisphere in the continent of Asia. तो एशिया के नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में है, ये है पूरा एशिया. यहाँ पे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में है इंडिया, एशिया के साउथ में, बट
नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, extend from 8.4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude, extend from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude. The Tropic of Cancer at 23 degree 30 minute north cuts the country in almost two equal halves. So वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इंडिया का लोकेशन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ये 8.4 to 37.6 north and 68.7 to 25 97 degree 25 minute ईस्ट। ठीक है, तो ये है इंडिया का लोकेशन। नाउ सी द टेक्स्ट बुक। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है अगर एरिया की बात की जाए, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज द क्लाइमेट कंडीशन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। पूरे इंडिया में एक जैसी आपको कंडीशन नहीं मिलेगी। यहाँ डेजर्ट है तो यहाँ हैवी रेन है, यहाँ पे माउंटेन है तो ये नीचे वाला हिस्सा साउथ इंडिया पेनिनसुलर रीजन है। क्लाइमेट रिफर्स टू द average weather condition over a long period of time. The altitude of the place, location of mountains, plateaus, distance from the sea or ocean, the tides and currents of the sea or the ocean, and forest cover plays an important role in creating the climate condition of a place. So these are the factors which affect on the climate of particular region. India is situated in the northern hemisphere and lies between 8 degree north to 37 degree north latitudes. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Due to this, northern India experiences a cooler climate and it is warm in the central region. Several places of the country are more than 1500 km away from the coast. तो कुछ रीजन ऐसे हैं जो 1500 यहाँ कोस्ट से 1500 किलोमीटर दूर है, जैसे नॉर्थ इंडिया के जो प्लेसेस है। Due to this, those places experience extreme climate condition, with both winter and summer being severe. However, the places situated at higher altitudes are cooler. यानी जो हाइट पे है, माउंटेन के ऊपर होंगे, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा। पर जो ऐसे ओशन से दूर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, यानी वहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। जैसे आप दिल्ली ले लो, कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे समर में बहुत गर्मी होती है और विंटर में बहुत ठंडी होती है, क्योंकि उसके पास में कोई लार्ज वाटर बॉडी नहीं है। श्रीनगर और मनाली, तो श्रीनगर और मनाली जो है वो हाइट पे है, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड है। द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू सीजनल विंड्स। इंडिया में जो रेनफॉल है वो, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये विंड्स का टाइप है। यानी इस तरह से यहाँ से अरेबियन सी से विंड एंटर होती है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से विंड एंटर होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे रेन मानसून एंटर होता है इंडिया में। दिस विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, पर इसका जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। इसकी वजह से साउथ में ज़्यादा रेन होती है, जैसे जैसे विंड आगे बढ़ती जाती है उसके अंदर की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और फिर राजस्थान पहुंचते पहुंचते इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे हार्डली मानसून बारिश होती है। Thus, Meghalaya and Assam experiences heavy rainfall, whereas there is a scanty rainfall in the desert region of Rajasthan. अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इतना रेन होता है, और जबकि अगर आप यहाँ पे चेरापूंजी में जाओ वहाँ पे 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। कितना डिफरेंस, एक ही कंट्री के दो पार्ट है, फिर भी उसका रीज़न जो है वो विंड डायरेक्शन है। ये देखिए, यहाँ मॉडरेट रेनफॉल होता है, ये एरिड लो लैंड, वेरी हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, ये क्लियरली मैप से आपको आइडिया आ जाता है। अब सीज़न की बात करें
तो इंडिया की सीज़न देखिए यहाँ पे, समर मार्च में माउंटेन्स, हिल स्टेशंस एंड नेशनल पार्क्स, विंटर नवंबर टू फरवरी, beaches and desert state, monsoon June October, high altitude places, heavy discounts at beach location। तो ये यहाँ कहाँ पे आप जा सकते हो वो प्लेसेस भी लिखी है। समर में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, विंटर में यहाँ पे जाओगे तो अच्छा लगेगा, और मानसून में यहाँ जाओगे तो यहाँ अच्छा लगेगा। ये अलग अलग टाइप के कौन सा प्लेस कैसा होगा वो, हॉट एंड ड्राई येलो कलर, तो ये देखिए जोधपुर गुजरात महाराष्ट्र का रीजन आ जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड, तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट पूरा ईस्ट इंडिया। कंपोजाइट, तो ये वाला नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया का पार्ट। कोल्ड, तो पूरा नॉर्थ इंडिया में जाओ, इधर जाओ आसाम में। और मॉडरेट, तो मॉडरेट टाइप का तो बहुत ही हार्डली कोई प्लेस है। तो देखते हैं सीज़न में क्या है। इंडिया एक्सपीरियंसेस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुआरी। तो अभी दिसंबर चालू होने वाला है तो कोल्ड चालू होगी। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल्स, क्योंकि सन रेज वो स्लैंट यानी थोड़ी सी क्रॉस आती है, उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। प्लेसेस इन northern and northeastern India like Shimla and Darjeeling experiences extremely cold temperature. Many a times the temperature falls below 5 degrees Celsius, which result in snowfall at times. It is not very cold in southern India as it is a comparatively nearer to the equator. सदर्न इंडिया में टेम्परेचर इतना डिक्रीज नहीं होता है क्योंकि एक तो आजू बाजू लार्ज वाटर बॉडी है, पेनिनसुलर रीजन है और इक्वेटर के पास है। पर नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है, कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है। एक तो हाइट है, दूसरा ओशन से दूर रीजन है। और अभी फ़िलहाल अगर माउंट आबू की बात करें तो वहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, इतनी एक्सट्रीम कोल्ड है। फिर समर की बात करें तो इंडिया एक्सपीरियंसेस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मे ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द टेम्परेचर इज वेरी हाई in many places of central and western India. The temperature ranges between 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius during April June। और उसकी वजह से ही आपको अप्रैल में वैकेशन होता है, मई में पूरा वैकेशन होता है। जबकि नॉर्थ इंडिया में मई में स्कूल चालू होती है, वहाँ पे दिसंबर जनवरी में वैकेशन होता है क्योंकि तब वहाँ कोल्ड बहुत होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे 55 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। और मानसून किस तरह का है, तो मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया क्योंकि हमारी कंट्री एग्रेरियन कंट्री है। इट लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ्स। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, इंडिया रिसीव्स हाउ मैनी परसेंटेज रेनफॉल्स ड्यूरिंग month of June to September. The winds blowing across the Arabian Sea enter इंडिया थ्रू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, यहाँ से एंटर होती है इस तरह से। दैट रीजन रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होता है क्योंकि यहाँ से विंड एंटर होती है। द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एक्सेट्रा। तो बे ऑफ बंगाल से जो विंड एंटर होती है वो यहाँ आसाम, मेघालय ये सब रीजन में ज़्यादा बारिश देती है। द रिट्रेटिंग मानसून विंड्स, तो रिट्रेटिंग यानी जो एयर अंदर गई है अब वो वापस भी बाहर आएगी, यहाँ तक पहुँची, अब यहाँ पे उसकी ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, फिर यहाँ हिमालय आ जाता है, यहाँ से वो रिटर्न होती है, उसको रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। विंड्स ब्रिंग्स रेनफॉल टू पंजाब, वो पंजाब में ये रीजन में ज़्यादा रेन देती है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे एंड उत्तराखंड यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे मानसून होता है। अब ये क्लाइमेट की इफ़ेक्ट क्या होती है, तो यहाँ पे ये देखिए शॉर्ट में, क्लाइमेट रेगुलेट्स लाइफ ऑन अर्थ, इट डिटरमाइंस हाउ ह्यूमन्स लिव्स, द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज डिपेंड ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज,
द अर्थ इज़ इन ट्रबल एंड इट नीड्स आवर हेल्प। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी सिस्टम खराब हो गई है। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, तो क्लाइमेट हैज़ अ ट्रमेंडियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। दिस इफेक्ट इज अ विजिबल इन द डाइट, लाइफस्टाइल and nature of the people. Rajasthan faces water scarcity and hence most of the houses have walled terraces to store water. People in northern India use woolen garments to protect themselves from extreme cold, while people of South India prefer cotton coats to protect themselves from heat. नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंडी होती है तो वहाँ पे स्वेटर पहना जाता है, साउथ इंडिया में इतनी नहीं होती है तो कॉटन क्लोथ्स पहना जाता है। The people of the desert region wear loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert. They also cover their heads with a cloth piece, large handkerchief, to protect their head and hair from the sand. Due to the varied climate condition across India, the people of Gujarat are usually engaged in businesses. The people of Punjab are mostly soldiers, while the people of northern India are involved in agriculture. तो क्लाइमेट की वजह से हम हमारा ऑक्यूपेशन फिक्स करते हैं। सिमिलरली द नोमैड्स ऑफ द डेजर्ट आर एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री। Wheat is the staple food of the people of the coastal areas of Gujarat, while rice and fish are the staple diet of the people of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. तो एग्रीकल्चर भी जो है वो क्लाइमेट के क्लाइमेट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो ये सब इफेक्ट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क में आ सकता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। अब आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ रिसोर्स। अब जो पोर्शन है वो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन में आ सकता है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी, कैपेसिटी एंड यूटिलिटी एंड विच बिकम्स आवर हेरिटेज can be termed as resources. Resources are also those that can fulfill certain aims, objectives, and offer concerned solution towards problems. Concrete solutions towards problem यानी वो हर एक चीज़ जिससे हमारे सॉल्यूशन आता है, जो हमारे एम्स को फुलफिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं, वो सब रिसोर्स है। Anything that can be aimed at and used to accomplish human necessities also becomes a resources. जो भी हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं वो सब resources कहलाए जाते हैं। The people of the earlier times were not aware of the mineral available below the surface of the soil and hence could not utilize it. तो पहले के ज़माने में मिनरल्स के बारे में किसी को पता नहीं था और वो यूज़ नहीं करते थे, इसलिए वो टाइम पे मिनरल रिसोर्सेस नहीं थे। पर आज के डेट में मिनरल के बिना तो कोई काम नहीं होता है हमारा। सब डेवलपमेंट का जो बेस है वो मिनरल्स ही है। तो आज की डेट में मिनरल्स को हम रिसोर्सेस में काउंट करेंगे। दैट इज़ वाई दोज मिनरल्स वर नॉट कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, बट दिस रिसोर्स आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन। The things that help in men's welfare and satisfy their demands are resources for men. तो ये सिंपल डेफिनेशन है, जो भी चीज़ हमारी भलाई के लिए और हमारी डिमांड, हमारी ज़रूरत, हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। यहाँ पे भी एक स्लाइड है। The term resources was taken to mean only the natural factors or things like mountains, minerals, deposit, forest, animal life, soil, water, air, etc. Resources was used to refer to only natural resources. This term was taken to mean all natural phenomena or factors whether they are useful to man or not. तो जनरली रिसोर्स जो है वो नेचुरली जो प्रोडक्ट है उसके लिए यूज़ किया जाता है, भले ही हम उसे यूज़ करें कि ना करें। पर ये जो मीनिंग है वो आपको हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने में आएगा। अब नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट is easily available and useful to man. These are three types of resource: water resource, mineral resource and land resource. तो ये तीन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप में आपको ये तीन लिखना है। सबसे पहले
वैसे देखने जाए तो सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सॉइल, ये सब रिसोर्सेज ही है और इसको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला आता है वाटर रिसोर्स। द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज, एक्सेट्रा। These rivers of India are divided into two on the basis of its origin and characteristic. तो इंडिया की जो रिवर है उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जहाँ से वो निकली है उसके हिसाब से 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो ये सब रिवर्स जो है वो नॉर्दर्न इंडिया की है, इंड्यूस, झेलम, रावी, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये जितनी भी रिवर दिखाई दे रही है, कोसी, गंडक, ये सब नॉर्दर्न इंडिया की रिवर्स है। रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये आपको याद रखना है, ये 2-3 मार्क्स में आ सकता है। द सिंधु, गंगाज, यमुनाज एंड ब्रह्मपुत्रास यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। दे आर पेरेनियल इन नेचर, यानी पूरा साल उसमें पानी रहता है, उसको पेरेनियल बोलते हैं। द गंगा इज ऑल्सो नोन एज द भगीरथी। देर इज अ ट्राइंगल फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा। यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये ट्राइंगल शेप है, यहाँ से जो निकलती है ये, तो ये है सुंदरवन डेल्टा, जिसको डेल्टा बोलते हैं। Delta of the river Ganga. The Ganga and the Brahmaputra are major waterways of India and used for navigation purposes. Besides this, the Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and Bias also flow in the north. Every year, devastating flood in Kosi River in the state of Bihar destroy the lives and property of the people of that area. तो ये रीजन है कोसी जो ये रही, तो ये बिहार में हर साल फ्लड की सिचुएशन क्रिएट करती है, ये बार भी ऐसा ही हुआ था। अब साउथ इंडिया की रिवर देखते हैं। रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा, महानदी फ्लोज डाउन टू द माउंटेनियंस इन सेंट्रल इंडिया। द नर्मदा एंड तापी फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में मर्ज होती है और बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब बंगाल में मर्ज होती है, merge with the Arabian Sea, while the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra flow eastward and merge into the Bay of Bengal. These rivers flow through the uneven surface on the ground like high and slopy regions and therefore form waterfalls. तो यहाँ पे waterfall आपको ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। That is why this river are not used as waterways. इसलिए ये river जो है वाटरवे के लिए यूज़ नहीं होती है, जबकि नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है स्पेशली गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा वो वाटरवेज में यूज़ होती है। दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पसेस एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटरफॉल होगा वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सब लोकेशन आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में मैप वर्क में आ सकता है। अब यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि जितने नाम दिए उतने मैं यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो फर्स्ट है नर्मदा प्रोजेक्ट। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को इससे बेनिफिट होता है। ये है नर्मदा प्रोजेक्ट जो गुजरात में है, यहाँ पे अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बना है। सेकंड है कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये है कृष्णा नागार्जुन प्रोजेक्ट, ये है नागार्जुन सागर। फिर थर्ड है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। तो ये तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है, ये वाला। देन आफ्टर कोसी प्रोजेक्ट, ये तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, सॉरी, ये है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट और ये है
कोसी प्रोजेक्ट जो बिहार में कोसी रिवर के ऊपर, और उसके बाद है हीराकुंड प्रोजेक्ट जो महानदी के ऊपर है उड़ीसा में। ये है हीराकुंड प्रोजेक्ट, द लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा मैन मेड डैम। और नेक्स्ट है सतलुज, उसमें भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान में उसका वाटर यूज़ होता है। ये है भाखरा डैम और ये है नांगल डैम। तो ये 5 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। उसके अलावा लेक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है फ्रेश वाटर लेक, नेचुरल लेक जिसको बोलते हैं। इसमें फ्रेश और सॉल्टी वाटर दोनों आ जाते हैं। पहला है दाल एंड वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में है। तो ये दाल लेक है और ये वुलर लेक है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। देन आफ्टर कोलेरू लेक, तो ये कोलेरू लेक है, ये है कोलेरू लेक। देन आफ्टर पुलिकट लेक, ये है पुलिकट लेक। देन आफ्टर चिल्का लेक, ये है चिल्का लेक। देन आफ्टर सांबर लेक, ये है सांबर लेक। ये पूरा उसकी सैटेलाइट पिक्चर है। और ये है लास्ट में नल सरोवर, देखिए। तो ये हमारे नेचुरल लेक है। इसमें से दाल और वुलर जो है फ्रेश वाटर, कोलेरू फ्रेश वाटर लेक, पुलिकट, चिल्का, सांबर, ये दोनों तीन सॉल्ट वाटर लेक हैं। एंड नल सरोवर पार्सली सॉल्ट वाटर, यानी थोड़ा खारा पानी होगा उसका। उसके बाद आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के ऊपर गोविंद सागर, जो डैम के पीछे वाला रिजर्वियर जो होता है वो ये रहा। देन आफ्टर कृष्णा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर, ये नागार्जुन सागर जो अभी आपने देखा। देन आफ्टर आंध्र प्रदेश में मांजराम रिवर के ऊपर निज़ाम सागर, तो ये है निज़ाम सागर पूरा। देन आफ्टर गुजरात में नर्मदा, ये है नर्मदा सरदार सरोवर के पीछे वाला। और चंबल मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, ये है गांधी सागर। तो ये लेक है, आर्टिफिशियल लेक। अब नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। द नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात. In terms of capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal network is approximately 66,000 किलोमीटर। यानी नर्मदा डैम से जो कैनल बनाई गई है उसकी पूरी लेंथ 66,000 किलोमीटर है। 8,215 villages and 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. तो एक प्रोजेक्ट बनने से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, उसका जो बजट है 1986-87 में 6,400 करोड़ हुआ था। Investors are the World Bank until 1993 when they withdrew. Government of Gujarat state where the Sardar Sarovar Dam is located and S Kumar, India's leading textile companies, ये इसके इन्वेस्टर थे। एक्सपेंडिचर सो फार 14,000 करोड़। पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो 24,000 करोड़ थी। उसकी जो मेन कैनल थी उसकी कॉस्ट थी 4,000 करोड़। विलेजेस सबमर्ज, 14 विलेजेस सबमर्ज हो गए। फैमिली डिस्प्लेस 4,600 फैमिली। इरीगेशन फॉर 1.91 मिलियन हेक्टर्स। ड्रिंकिंग वाटर फॉर 8,200 villages and 135 towns. Other facts, it will displace 1,80,000 people more than projected and affect 7 lakh livelihoods. 3,200 dams to be built along
1200 kilometer Narmada River. Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan were likely to benefit from this project. 4 स्टेट को इसका पानी मिल रहा है. Opponent says the dam will displace 2 lakh people and damage ecology. It is estimated the project would be fully completed by 2025, जो कि अब तो complete हो चुका है before date. So this is the information about नर्मदा प्रोजेक्ट. ये आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट और डिफरेंट मिनरल्स के बारे में पता चलेगा. वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे. तो आई होप दैट यहाँ तक जो भी आपने देखा है वो आपके समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे अपने क्वेश्चन टेक्स्ट कर सकते हैं. और अभी स्कूल चालू नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो पढ़ाई पे ध्यान देना. स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स, wear mask and maintain social distance also. Okay, and take care of your family also. Thank you very much. God bless you.